السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہمارا یہ چوتھا محاضرہ ہے فن صرف سے متعلق۔ آج کے محاضرے میں ہم اجوف کے کچھ قواعد اور اس کی عملی مشق معلوم کریں گے۔ اجوف کی تعریف اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ معتل العین کو اجوف کہتے ہیں، یعنی وہ کلمہ جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو اسے معتل العین کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام اجوف ہے۔ اجوف کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ ان میں استعمال ہونے والے قواعد میں سے چند اہم قواعد آج کے درس میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ ہے واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے۔ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیا جائے گا۔ یہ پہلا قاعدہ ہے اجوف کا، جیسے قولا سے قالا، بیع سے باع۔ قولا فعلا کے وزن پر ہے، فعلا کے وزن پر قولا ہے۔ واو عین کلمے میں واقع ہوا ہے، بیع یہ بھی فعلا کے وزن پر ہے، یا عین کلمے میں واقع ہوا ہے۔ تو ان دونوں مثالوں میں واو اور یا متحرک ہیں، ان سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہے، ما قبل مفتوح ہے، ان سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہے، جس کی وجہ سے اس واو اور یا کو الف سے بدل دیا گیا۔ قولا سے قالا ہوا، بیع سے باع ہوا، خبیثہ سے خافہ۔ تو واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے۔ حرکت چاہے کچھ بھی ہو، یہاں پر فتحہ ہے، یہاں پر بھی فتحہ ہے، یہاں پر واو پر کسرہ ہے۔ حرکت چاہے وہ فتحہ کی ہو، ضمہ کی ہو، کسرہ کی ہو، ما قبل مفتوح ہو، واو اور یا متحرک ہو، اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے۔ اولا سے آلا، بیع سے باع، خبیثہ سے خافہ۔ قرآن مجید کی بھی کچھ مثالیں اس میں دی گئی ہیں، جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے واو کو الف سے بدل دیا گیا ہے صرف کے اس قاعدے کے مطابق۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال الذين لا يرجون لقاءنا۔ البتہ اس قاعدے کے کچھ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط نہ پائے جائیں تو پھر یہ قاعدہ استعمال نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرط ہے واو اور یا فا کلمے میں نہ ہو۔ اجوف کا قاعدہ ہے واو اور یا متحرک عین کلمے میں ہو، یا پھر واو اور یا متحرک لام کلمے میں بھی ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے۔ لیکن اگر واو اور یا فا کلمے میں ہو تو واو اور یا کو الف سے نہیں بدلا جائے گا، وہ اپنی حالت پر باقی رہیں گے۔ جیسے توسط، تیقظ۔ توسط تفعل کے وزن پر ہے، تیقظ یہ بھی تفعل کے وزن پر ہے۔ تفعل تو اس میں واو فا کلمہ ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں واو کو الف سے نہیں بدلا گیا۔ تیقظ اس میں بھی یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، لیکن یا کو الف سے نہیں بدلا گیا، اس لیے کہ یا فا کلمے میں واقع ہوا ہے۔ واو اور یا فا کلمے میں واقع ہو تو واو اور یا کو الف سے نہیں بدلا جائے گا۔ دوسری شرط ہے واو اور یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، واو اور یا الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو۔ جیسے
रमा का तस्नीया आता है रमया, दआ का तस्नीया आता है दअबा, दआ दअबा, वाव मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, दअबा रमया, वाव और या मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, लेकिन वाव के बाद अलिफ तस्नीया आ गया है, या के बाद अलिफ तस्नीया आ गया है। वाव और या अलिफ तस्निया से पहले वाक़े ना हो, वाव और या अलिफ तस्निया से पहले वाक़े हो तो वाव और या को अलिफ से नहीं बदलेंगे। तीसरी शर्त है वाव और या लतीफ मकरून के आइन कलीमे में वाक़े ना हो, वाव और या लतीफ मकरून के आइन कलीमे में वाक़े ना हो। लतीफ मकरून हम पढ़ चुके हैं कि वो कलीमा जिसमें हर्फ इल्लत एक साथ मिलकर आए, एक साथ मिलकर अगर हर्फ इल्लत आए तो इनको लतीफ मकरून कहा जाता है। जैसे फवा, फवा और हैजिया, फवा, इसमें दो हर्फ इल्लत है, एक वाव है दूसरा अलिफ है, और इसमें भी दो हर्फ इल्लत है, आइन कलीमे में भी या है, लाम कलीमे में भी या है, और दोनों हर्फ इल्लत मिलकर आए तो लतीफ मकरून के आइन कलीमे में हर्फ इल्लत वाक़े हो, वाव और या वाक़े हो तो उनको अलिफ से नहीं बदला जाएगा। हालांकि वाव मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, या मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, लतीफ मकरून के आइन कलीमे में वाक़े होने की वजह से वाव और या को अलिफ से नहीं बदलेंगे। चौथी शर्त यह है कि वाव और या हर्फ मद्दा जायदा से पहले ना हो, मद्दा जायदा से पहले वाक़े ना हो। इस मद्दा जायदा से पहले मफ्तूह है, वाव मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, या मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, लेकिन चूंकि मद्दा उसके बाद मद्दा है, मद्दा जायदा है, मद्दा जायदा से पहले ये वाव और या वाक़े हुए, इसलिए वाव और या को अलिफ से नहीं बदलेंगे। बयादुन तवीलुन गयूरुन। पांचवी शर्त यह है कि वाव और या नून ताकीद और याए मुशद्दद से पहले वाक़े ना हो, नून ताकीद और याए मुशद्दद से पहले वाक़े ना हो, चाहे वो नून ताकीद सकीला हो या नून ताकीद खफीफा। जैसे खशिया से अम्र इख्शा आता है, अगर नून ताकीद मिलाएंगे तो इख्शयन्न, इख्शयन्न, या मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है। अलविजुन, अलीजुन से निस्बत अगर दी जाए अलविजुन तो याए मुशद्दद है, याए निस्बत है, ये इससे पहले वाव मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, या मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, तो वाव और या, तो उस वाव और या को अलिफ से नहीं बदलेंगे। फ़अलानु और फ़अला के वजन पर ना हो, फ़अलानु और फ़अला के वजन पर ना हो। जैसे हयावानु, जिंदा के माने, जिंदगी के माने में हयावानु, वइन्न दारल आखिरत लहियल हयावान। इसी तरीके से दवरानु, या मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, लेकिन ये कलीमा फ़अलानु के वजन पर है, फ़अलानु के वजन पर है, इसलिए इसमें या को अलिफ से नहीं बदला जाएगा। इसी तरीके से दूसरी जो मिसाल है फ़अलतुन, फ़अलतुन के वजन पर ना हो, जैसे हयादा, मुतकब्बिराना चाल चलने को कहते हैं हयादा, या मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, लेकिन ये फ़अला के वजन पर है, तो फ़अला और फ़अलानु के वजन पर ना हो। और सातवीं शर्त यह है कि वो कलिमा जिसमें वाव और या हो, मा क़बल मुतहर्रिक हो, ऐसा कलिमा उस कलिमे के हम माने ना हो जिसमें ये तालील जारी ना होती हो, ये तालील वाक़े ना होती हो। जैसे इअवर्रा, इअवर्रा, वाव मुतहर्रिक तो है, मा क़बल मफ्तूह नहीं है, इसमें वाव को अलिफ से नहीं बदलेंगे, लेकिन इसी के हम माना जो लफ्ज है अबीरा है, वाव मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, लेकिन इसमें वाव को अलिफ से नहीं बदलेंगे, क्योंकि इसके हम माना जो लफ्ज इअवर्रा है उसमें वाव को अलिफ से नहीं बदला गया है। इसी तरीके से इज्तवरा है, और उसी के माने में
واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو متحرک تو ہے ما قبل مفتوح نہیں ہے، اس لیے اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، لیکن اسی کے ہم معنی جو لفظ ہے تجاورا ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح نہیں ہے، اس میں الٹ دیا میں، اس میں واو متحرک ہے ما قبل مفتوح ہے، اس میں واو الف سے نہیں بدلیں گے کیونکہ اس کا جو ہم معنی لفظ ہے تجاورا واو متحرک ما قبل مفتوح نہیں ہے، اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا، اور اس کے ہم معنی لفظ اجتورا ہے، اس لیے اس میں بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے، اس کے 7 شرائط بتائے گئے۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہے ثلاثی مجرد کے ماضی میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے تو فا کلمے کو کسرہ دیا جائے گا اگر وہ کلمہ یائی یا واوی مکسور العین ہو۔ ثلاثی مجرد کے ماضی میں عین کلمہ یعنی واو اور یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے تو فا کلمے کو کسرہ دیا جائے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ یائی ہو یا مکسور العین، جیسے فعلا سے فعلنا کے وزن پر قولنا ہے۔ اب اس میں قاعدہ جاری ہوا واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیے تو قالنا ہوا۔ اب اس میں دیکھیے اب جو قاعدہ ہے ثلاثی مجرد کے ماضی میں لام بھی ساکن ہے الف بھی ساکن ہے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیے تو قلنا ہوا، قلنا۔ تو ثلاثی مجرد کے ماضی میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے حرف علت یا واو اور یا کو حذف کر دیا جائے اور وہ مکسور العین یا یائی نہ ہو، یائی نہ ہو تو ضمہ دیا جائے گا۔ قلنا یائی یا پھر واوی مکسور العین ہو تو اس صورت میں کسرہ دیا جائے گا۔ اس کی مثال ہے بیعنا، بیعنا، خبثنا۔ یا کو الف سے بدل دیے تو باعنا ہوا، واو کو الف سے بدل دیے تو خافنا ہوا۔ اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیے تو خفنا ہوا۔ بعنا اور خفنا ہوا۔ اب یہ یائی ہے، بیعنا یائی ہے اور خافا واوی ہے، لیکن یہ واوی مکسور العین ہے، خبثنا واوی مکسور العین ہے اور یہ یائی ہے، تو ان دونوں مثالوں میں فا کلمے کو کسرہ دیا جائے گا۔ خفنا، بعنا، باع، باع، باعو، باعت، اس کے بعد باعتا جمع مؤنث غائب کا صیغہ جو ہے بیعنا تھا، تعلیل کے بعد جو دوسرا قاعدہ اس میں جاری ہوا فا کلمے کو کسرہ دیں گے بعنا، اسی طریقے سے خفنا۔ اور اگر یائی نہ ہو، واوی ہو، مکسور العین نہ ہو تو اس صورت میں فا کلمے کو ضمہ دیا جائے گا، جیسے کہ قلنا ہے، قولنا سے قلنا۔ تو یہ تیسرا قاعدہ ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے ثلاثی مجرد کے ماضی میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے تو فا کلمے کو کسرہ دیا جائے گا اگر یائی یا پھر واوی مکسور العین ہو، اور اگر یائی اور واوی مکسور العین نہ ہو تو فا کلمے کو ضمہ دیا جائے گا، جیسے قلنا۔ قرآن مجید میں اس کی بھی کئی مثالیں ہیں۔ پہلے قاعدے کی مثال کسرہ دینے کی مثال وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا، خِفْتُمْ فا کلمے کو کسرہ دیا گیا کیونکہ وہ واوی مکسور العین ہے، اور واوی مکسور العین نہ ہو تو ضمہ دیا جائے گا، جیسے قرآن مجید میں لفظ قلت، قلتم، قلنا کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ قلتم ان ھذا، فا کلمے کو اس میں ضمہ دیا گیا ہے۔
क्योंकि यहाँ पर वाव और या इज्तिमाई साकिनैन की वजह से हज़फ हो गए। तीसरा कायदा है वाव और या मकसूर, वाव और या मकसूर माजी मजहूल के ऐन कलिमे में वाक़े हो तो वाव और या की हरकत नकल करके उससे पहले वाले हर्फ को देंगे और पहले वाले हर्फ की जो हरकत है उसे हज़फ कर देंगे। वाव और या मकसूर माजी मजहूल के ऐन कलिमे में वाक़े हो तो वाव और या की हरकत यानी वाव और या का कसरा फा कलिमे को दिया जाएगा और फा कलिमे की जो हरकत है जम्मा उसे हज़फ कर देंगे। जैसे आला का मजहूल नुसिरा के वजन पर फूबीला है, बाआ का मजहूल फुइला के वजन पर बुइआ है। सुलासी मजहूल है ये और आइन कलिमा मकसूर है, माजी मजहूल के इन कलिमे में वाव मकसूर वाक़े हुआ है, माजी मजहूल के इन कलिमे में या मकसूर वाक़े हुआ है, तो इसलिए पहले तो फा कलिमे की हरकत को हज़फ कर देंगे, फिर उसके बाद वाव और या की हरकत फा कलिमे को देंगे। वाव की हरकत फा कलिमे को दिए तो क़िउला हुआ, या की हरकत फा कलिमे को दिए तो बीआ हुआ, पीआ और क़िउला हुआ। क़िउला के बारे में हम लोग कायदा इससे पहले पढ़ चुके हैं मिसाल में कि वाव साकिन गैर मुदगम मा कबल मकसूर हो तो वाव को या से बदल दिया जाएगा। वाव साकिन गैर मुदगम मा कबल मकसूर हो तो वाव को या से बदल दिया जाएगा, तो इसलिए अब यहां पर वाव को या से बदल दिया गया तो क़ीला हुआ। तो काला का मजहूल, आला का माजी मजहूल क़ीला, बाआ का माजी मजहूल बीआ, खाफा का माजी मजहूल खीफा, खाफा असल में खूवीफा था। वाव माजी मजहूल के ऐन कलिमे में मकसूर वाक़े हुआ है तो इसलिए वाव की हरकत पहले वाले हर्फ को यानी फा कलिमे को देंगे और फा कलिमे की हरकत हज़फ कर देंगे। अब चूंकि वाव साकिन माक़बल मकसूर है इसलिए वाव को या से बदल देंगे तो क़ीला और खीफा होगा। तो ये तीसरा कायदा है। चौथा कायदा है वाव मज़मूम या मकसूर, वाव मज़मूम हो या मकसूर हो और उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो तो वाव और या की हरकत नकल करके मा कबल को देंगे। वाव मज़मूम हो या मकसूर हो और उससे पहले वाला हरफे सही, लफ्ज़ सही छूट गया है, उससे पहले वाला हरफे सही साकिन हो तो वाव और या की हरकत नकल करके मा कबल को देंगे। जैसे आला का मुजारे यंसुरु के वजन पर यक़बुलु है, यक़बुलु। बाआ का मुजारे यज़रिबु के वजन पर यबयिउ है। वाव मुतहर्रिक है, माक़बल हरफे सही साकिन, हरफे सही वाव और या को हरफ इल्लत कहते हैं। वाव और या के वाव या अलिफ के अलावा जितने भी हुरूफ है वो हरफे सही है। तो वाव मुतहर्रिक है, माक़बल हरफे सही साकिन है, या मुतहर्रिक माक़बल हरफे सही साकिन है। वाव मज़मूम है, माक़बल हरफे सही साकिन है, या मकसूर माक़बल हरफे सही साकिन है। तो ऐसी सूरत में वाव और या की हरकत नकल करके माक़बल हर्फ को देंगे, हरफे सही को देंगे। तो यक़बुलु से यक़ूलु हुआ, यबयिउ से यबीउ हुआ। अब यहां पर तो यक़बुलु यक़ूलु यबीउ, वाव मुतहर्रिक वाव मज़मूम माक़बल साकिन हो या मकसूर माक़बल साकिन हो तो वाव और या की हरकत नकल करके माक़बल को देंगे। यक़बुलु से यक़ूलु, यबयिउ से यबीउ। पांचवा जो कायदा है वाव और या मफ्तूह और उससे पहले वाला, वाव और या मफ्तूह हो और उससे पहले वाले पहला वाला हरफे सही साकिन और उससे पहले हरफे सही साकिन हो तो वाव और या की हरकत पहले वाले हर्फ को देंगे। वाव और या मफ्तूह हो और उससे पहले हरफे सही साकिन हो तो वाव और या की हरकत नकल करके माक़बल को देंगे। जैसे
वाव मजमूम या मकसूर हो तो वाव और या की हरकत नकल करके मा कबल हरफ सही साकिन को दी गई। तो इसी तरीके से वाव और या मकसूर हो, मा कबल हरफ सही साकिन हो तो वाव और या की हरकत नकल करके मा कबल को देंगे। जैसे खाफा का मुजारे यस्माउ के वजन पर यख्वफु है। नाला ये भी बाबे समिया से आता है, इसका भी मुजारे यस्माउ के वजन पर यन यलु आता है। यन यलु समिया से है, याई है, ये समिया से वावी है। यख्वफु यन यलु, वाव और या मफ्तू है, माकबल हरफ सही साकिन है, तो वाव और या की हरकत नकल करके माकबल को देंगे। तो यखाउफु हुआ, यन यलु से यनैलु हुआ। फिर इसका जो कायदा है, पांचवा कायदा है, यखौफ और यनैलु में वाव को अलिफ से बदल देते हैं। उसके लिए जो कायदा है कि वाव और या साकिन हो और मा कबल मफ्तू हो तो वाव और या को अलिफ से बदल दिया जाएगा। अजवफ के आइन कलीमे में वाव और या साकिन हो, मा कबल मफ्तू हो तो वाव और या को अलिफ से बदल दिया जाएगा। तो यख्वफु से यखाफ, यन यलु से यनालु, वाव साकिन मा कबल मफ्तू हो, या साकिन मा कबल मफ्तू हो तो वाव और या को अलिफ से बदल दिया जाएगा। तो यख्वफु से यनालु, यन यलु से यनालु। असल था ये यख्वफु यस्माउ के वजन पर, बाद में वाव की हरकत और या की हरकत माकबल को दिए तो यखौफ और यनैलु हुए। फिर या साकिन माकबल मफ्तू होने की वजह से वाव और या की हरकत पहले वाले हर्फ को दिए, वाव और या को अलिफ से बदल दिए तो यखाफु और यनालु हुए। ये जो चौथा कायदा और पांचवा कायदा है उसके शराइत ये है कि वाव और या मस्दर या मुश्तक के आइन कलीमे में वाक़ हो, और दूसरी शर्त यह है कि वाव और या के बाद हरफे साकिन ना हो। जैसे मिक़वालुन और मिख़यातुन। मिक़वालुन में वाव मुतहर्रिक माक़बल हरफे सही साकिन है, लेकिन वाव के बाद हरफे साकिन आ गया है। इसी तरीके से मिख़यातुन, या मुतहर्रिक माक़बल हरफे सही साकिन है, लेकिन या के बाद अलिफ साकिन आ गया है, अलिफ साकिन आ गया है, हरफ साकिन आ गया है, इसलिए अब या की हरकत नकल करके माक़बल को नहीं देंगे। तीसरी शर्त यह है कि वाव और या ऐसे कलीमे के आइन कलीमे में ना हो जिसके लाम कलीमे में तालील हो चुकी हो। वाव और या ऐसे कलीमे के आइन कलीमे में वाक़ ना हो जिसके लाम कलीमे में तालील हो चुकी हो। जैसे यफ़वी, यफ़रिबु के वजन पर यफ़वी, यफ़रिबु के वजन पर असल में यफ़वियु था, यफ़वियु। इसका कायदा इंशाअल्लाह हम नाक़िस में पढ़ेंगे। इसमें ज़म्मे को सुकून से बदल दिया गया है। यफ़वियु यफ़रिबु के वजन पर है, इसमें ज़म्मे को सुकून से बदल दिया गया है। इसका कायदा हम नाक़िस में पढ़ेंगे, इसके बाद वाली बहस में पढ़ेंगे। अब यह मुतहर्रिक मा कबल हरफ सही साकिन है, अब वाव की हरकत मा कबल को नहीं दी जाएगी। इसी तरीके से चौथी शर्त यह है कि फेले तअज्जुब, इसमें तब्दील और सिफत मुशब्बा का आइन कलीमा ना हो। वाव और या फेले तअज्जुब, इसमें तब्दील और सिफत मुशब्बा के आइन कलीमे में वाक़ ना हो। अगर वाव और या सिफत मुशब्बा फेले तअज्जुब या इसमें तब्दील के आइन कलीमे में वाक़ हो तो वाव और या की हरकत नकल करके माक़बल को नहीं दी जाएगी। जैसे आला से पहले तअज्जुब मा अक़वला आता है, मा अक़वला, वाव मुतहर्रिक माक़बल हरफ सही साकिन है, लेकिन ये पहले तअज्जुब है, इसलिए वाव की हरकत नकल करके माक़बल को नहीं देंगे। इसी तरीके से इसमें तब्दील नारा से अनवर आता है, अनवर, अनवरु, वाव मुतहर्रिक माक़बल हरफ सही साकिन है, वाव की हरकत नकल करके माक़बल को नहीं देंगे क्योंकि ये इसमें तब्दील के आइन कलिमे में वाव वाक़ हुआ है। इसी तरीके से सिफत मुशब्बा के आइन कलिमे में ना हो,
जैसे अस्वदु, अबयदु, वाव मुतहर्रिक तो है और माक़बल हर्फ सही साकिन भी है, लेकिन ये सिफत मुशब्बा है, इस वजह से इनमें वाव और या की हरकत नकल करके माक़बल को नहीं दी जाएगी। पांचवी शर्त यह है कि वाव और या इल्हाक के लिए ना हो। मुल्हक की बहस इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सुलासी मजीद सी को रुबाई के हम वजन बनाने के लिए सुलासी मजीद सी में कोई एक हर्फ बढ़ाना, इसे इल्हाक कहा जाता है। वाव और या मुल्हक के लिए हो, इल्हाक के लिए बढ़ाए गए हो, तो फिर वाव और या की हरकत भी नकल करके माक़बल को नहीं दी जाएगी। जैसे जहवरा है, जहवरा वाव मुतहर्रिक है, माक़बल हर्फ सही साकिन है, लेकिन इसमें जो वाव आया है ये इल्हाक के लिए आया है। इसी तरीके से शरयफा, सरवला, शरयफा, वाव या मुतहर्रिक है, माक़बल हर्फ सही साकिन है, या की हरकत माक़बल को नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जो या है ये इल्हाक के लिए आया हुआ है, मुल्हक के लिए आया है, इसलिए इसमें भी वाव और या की हरकत नकल करके माक़बल को नहीं दी जाएगी। और छठी शर्त यह है कि वो कलीमा जिसमें वाव और या साकिन माक़बल हर्फ पर जम्मा, फतहा या कसरा हो, मुतहर्रिक हो, तो वो कलीमा बाबे इफ़इलाल और इफ़इलाल से ना आए। इफ़इलाल इहमिरार, इहमर्रा, यहमर्रु, इहमिरार, और इफ़इलाल इक़शिअरा, इक़शअर्रा, इन दो अबवाब से वो कलीमा ना आए। अगर इन दो अबवाब से आता है तो उसमें भी वाव और या की हरकत नकल करके माक़बल को नहीं देंगे। जैसे इअवर्रा, इअवर्रा इहमर्रा के वजन पर है, वाव मुतहर्रिक, माक़बल हर्फ सही साकिन है, वाव की हरकत नकल करके माक़बल को नहीं देंगे। इसी तरीके से इस्वादा, इस्वादा वाव मुतहर्रिक, माक़बल हर्फ सही साकिन है, लेकिन ये बाद में इफ़इलाल से आया है। इक़शअर्रा, इसलिए इसमें भी वाव की हरकत नकल करके माक़बल को नहीं देंगे। इदहामा, इक़शअर्रा नहीं, इदहामा, इदहामा, यदहामु, इदहीमा, तो बाबे इफ़अल्ला या बाबे इफ़अलल्ला, इदहामा, इससे ना है। ये 6 शराइत हैं वाव और या मुतहर्रिक माक़बल हर्फ सही साकिन हो तो वाव और या की हरकत को नकल करके माक़बल को देने। छठा जो कायदा है, वाव मफ्तूह अजवस के मस्दर में वाक़े हो और उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो तो वाव को या से बदल देंगे। वाव मफ्तूह अजवस के मस्दर में वाक़े हो और उससे पहले वाले हर्फ पर कसरा हो तो वाव को या से बदल देंगे, बशर्ते के उसके माजी में तालील हो चुकी हो। जैसे सामा यसूम, ये बाबे ज़राबा से है, इसके माजी में तालील हो चुकी है। सवामा था, वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह, इसलिए वाव को अलिफ से बदल दिए, माजी में तालील हो चुकी है। इसका मस्दर फ़िआलुन के वज़न पर क़िवामुन आता है। इसी तरीके से क़ामा यक़ूमु का मस्दर फ़िआलुन के वज़न पर क़िवामुन आता है। मस्दर के ऐन कलिमे में वाव मफ्तूह वाक़े हुआ है, माक़बल मकसूर है, इसलिए वाव और या को अलिफ से बदल, तो क़िवामुन से क़ियामुन, क़िवामुन से क़ियामुन, वाव और या को अलिफ से बदल देंगे। अगर माजी में तालील नाज़ी हो तो फिर मस्दर में भी वाव को या से नहीं बदला जाएगा। जैसे आवमा बाबे मुफ़ाअला से है, आवमा, आवमा युक़ाविमु मुक़ावमतन, इसका एक मस्दर फ़िआलुन के वज़न पर आता है। और लम आखिर को जज़म देता, लम यक़ूल हो गया, इस्तिमाल साकिन की वजह से वाव को हज़फ कर दिए, लम यक़ूल हुआ, लम यक़ूल। अगर जमीन मिलने की इसका अगर तस्निया बनाएंगे तो
लाम कलीमा जो कि साकिन है मुतहर्रिक हो जाएगा मिलने की वजह से, अलिफ तस्निया के मिलने की वजह से लाम कलीमा मफ्तूह हो जाएगा। मजीद लाम कलीमा मफ्तूह हो जाए तो ये वाव जो हज़फ हो गया था वो वापस आ जाएगा। लम यकुल से लम यकूला, लम यकुल से लम यकूला, जो वाव हज़फ हो चुका था, हज़फ होने की वजह इज्तिमाई साकिन नहीं थी, अलिफ ज़मीर मिलने की वजह से मुतहर्रिक हो गया, तो इज्तिमाई साकिन बाकी नहीं रहा, तो इसलिए हज़फ शुदा हर्फ इल्लत वापस आ जाएगा। इसी तरीके से खशिया का अम्र, इख्शा का, उदउ का अम्र, उदउ आता है उनसुर के वजन पर, उनसुर के वजन पर उदउ था, हालत जज़म में हर्फ इल्लत को हज़फ कर दिए, लेकिन जब नून ताकीद जब मिलाएंगे ये जो हज़फ शुदा हर्फ इल्लत था ये वापस आ जाएगा। उदउवन्ना हालत जज़म में इज्तिमाई साकिनैन की वजह से हज़फ हो जाए तो हज़फ शुदा हर्फ इल्लत ज़मीर या नून ताकीद के मिलने की वजह से वापस आ जाएगा। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलु ज़ालिका गदा ला तख़ाफ़ा, यहाँ पर जो हज़फ हो गया था अलिफ ला तख़ाफ़ा में वो वापस आ जाएगा। उदउ के बजाय ला तक़ूलन्ना, इसकी मिसाल वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलु ज़ालिका गदा, तक़ूलु इसमें जो वाव था वो हज़फ हो गया था, ला तक़ुल वाव हज़फ हो गया था, लेकिन नून ताकीद मिलने की वजह से लाम कलीमा मुतहर्रिक हो गया, इसकी वजह से हज़फ शुदा हर्फ इल्लत वापस आ गया ला तक़ूलन्ना। और आखिरी फायदा है जो वाव और या इसमें फाइल के ऐन कलीमे में अलिफ ज़ाइदा के बाद मकसूर वाक़े हो और उसके फेल में तालील हो चुकी हो तो वाव और या को हमजा से बदल देंगे। जो वाव और या इसमें फाइल के ऐन कलीमे में अलिफ के बाद वाक़े हो, इसमें फाइल के अलिफ के बाद वाक़े हो और उसके फेल में तालील हो चुकी हो तो वाव और या को हमजा से बदल देंगे। जैसे क़ाला, इसका इसमें फाइल फ़ाइल के बदल पर नासिब के बदल पर फ़ाबिल, ख़ाफ़ा का इसमें फाइल ख़ाबिफुन, बाअ का बायिउन, वाव और या मकसूर है, अलिफ के बाद वाक़े हुए हैं, इसलिए वाव और या को हमजा से बदल दें। क़ाबिल से क़ाइल, क़ाबिल से क़ाइफुन, बायिउन से बायिउन। तो ये कुल 8 कायदे जो ज्यादातर अजवफ में इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर मैंने उनको बयान कर दिया है। इसके अलावा अजवफ बाबी से सर्फ़े सगीर की मैंने सिर्फ लफ्ज़ आला से सर्फ़े सगीर जो हो सकते हैं गालिबन 15 सर्फ़े सगीर सर्फ़े कबीर का एक चार्ट मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। मुमकिन है इराक़ की कुछ गलतियाँ हों, ज़रा उसको अच्छी तरीके से देख लें, उसमें कोई इश्काल हो तो आप पूछ लें। ये सारी तफसील पढ़ने की शायद मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, आप इन तमाम को देखकर समझ सकते हैं। सर्फ़े सगीर की भी मैंने एक चार्ट दे दिया है, सर्फ़े सगीर अजवफ बाबी और याई, ये भी आप लोग देख ले सकते हैं। उसके बाद जो ये है सुलासी मजीद फी के अबवाब 8 अबवाब से आता है, इनमें से 4 अबवाब में तारील होती है और 4 अबवाब में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती। बाब के जो 4 अबवाब है बाब तफ़ईल, तफ़अुल, मुफ़ाअला और तफ़ाउल। जव्वज़ा बाब तफ़ईल से है, तक़व्वला बाब तफ़अुल से है, आमला बाब मुफ़ाअला से है, तनावला बाब तफ़ाउल से। इसी तरीके से ये तो बाबी है। उसके बाद नीचे याई की मिसाल है, मय्यज़ा बाब तफ़ईल से, तबय्यना याई बाब तफ़अुल से, आयना मुफ़ाअला याई है और तदायना बाब तफ़ाउल से याई है। इसके माजी में आप देखते जाइए कहीं भी तारीफ नहीं होती। जब बजा, जब बजा, जब बजू, इसलिए मुजारे में भी देखिए
युजव्विजु, युजव्विजानी, युजव्विजूना, अम्र, जव्विज, जव्विजा, लियुजव्विज, कहीं भी तालीम नहीं होती। इसी तरीके से तकव्वला, यतकव्वलु, तकव्वुलन, आमना, युआयिनु, मुआयनतन, तनावला, यतनावलु, तनावुलन, इन 4 अबवाब में कहीं भी तालीम नहीं होती। पहले जो 4 अबवाब हैं इसमें तालीम होती है, इसीलिए मैंने उसकी असल भी उसके नीचे लिख दिया है। अकामा, ये असल में था अक्रमा के वजन पर अक्वमा। इसमें जो कायदा जारी हुआ, वाव मफ्तूह मा कबल हर्फ सही साकिन, इसलिए वाव की हरकत नकल करके मा कबल को दिए तो अक़ौमा हुआ। फिर वाव साकिन मा कबल मफ्तूह है, इसलिए वाव को अलिफ से बदल दिए तो अक़ामा हुआ। यही कायदा इस्ताआना में इस्ताअबना था, इज्तबाबा, इज्तबा असल में इज्तबाबा था, इनक़ादा असल में इनक़बदा था। तो इन तमाम में यही एक तालीम जारी हुई। इनक़बदा वाव मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, वाव को अलिफ से बदल दी, वाव की हरकत नकल करके वाव मुतहर्रिक मा क़बल हर्फ सही साकिन है, वाव की हरकत वाव को की हरकत नकल करके मा क़बल को दिए तो इनक़दा हुआ। फिर वाव को फतहे की मुनासबत से अलिफ से बदल दिए तो इनक़ादा हुआ। तो चारों में यही एक तालीम जारी है। उसके बाद इसका जो मुजारे है युकीमु, युक्रिमु के वजन पर युक्विमु था, युक्विमु, इसमें भी यही कायदा जारी हुआ है। वाव मुतहर्रिक मा क़बल हर्फ सही साकिन, वाव मुतहर्रिक मा क़बल हर्फ सही साकिन है, इसलिए वाव की हरकत नकल करके मा क़बल को दिए तो युकीमु हुआ। पढ़ भी नहीं सकते हम, तलफ़्फ़ुज़ अदा भी नहीं कर सकते क्योंकि वाव साकिन मा क़बल मकसूर है। तो इसलिए या की मुनासबत से वाव को या से बदल दिए, कसरे की मुनासबत से वाव को या से बदल दिए तो युकीमु हुआ। तो युकीमु असल में युक्विमु था, वाव की हरकत नकल करके मा क़बल को दिए, युकीमु हुआ। फिर वाव साकिन मा क़बल मकसूर है, तो इसलिए वाव को या से बदल दिए। ये पैदा जो तुम मीज़ान का पैदा पढ़े, ये मीज़ान था, वाव साकिन गैर मुल्क़म मा क़बल मकसूर हो तो वाव को या से बदल दिया जाता है। तो वाव को या से बदल दिए तो युकीमु। यही कायदा इसमें फाइल में इस्तेमाल होगा। मुकीमुन इसमें फाइल है, असल में मुक़बिमुन था, और अक़ामा का कायदा इसमें मफ़ऊल में जारी होगा। मुक़ामुन असल में मुक़बमुन था, वाव की हरकत नकल करके मा क़बल को दिए मुक़ामुन हुआ। फिर वाव साकिन मा क़बल मफ्तूह है, इसलिए वाव को अलिफ से बदल दिए तो मुक़ामुन हुआ। अक़िम, ला तक़ुल का कायदा इसमें जारी हुआ। ला तुक़िम में भी ला तक़ुल का कायदा इज्तिमाई साकिन की वजह से वाव को हज़फ कर दिया गया है। तो ये अगर हम पूरी गर्दान देखें और फिर उसमें उसके असली हुरूफ को ज़हन में रखकर उसके वजन को हम सामने रखें तो समझने में आसानी होगी और क़वाइद को नाफ़िज़ करने में भी आसानी होगी। ये क़वाइद के बाद असल मरहला इसमें जो तालीम का होता है, मैंने जितनी भी तालीमें हो सकती हैं वो तालीमें तकरीबन 6 तालीम मैंने यहाँ पर की हैं। इन तमाम को आप भी देखकर तालीम कर सकते हैं। तालीम का यह फायदा है, तालीम में 3 चीज़ों का ख्याल रखना जरूरी है। पहली बात बाप, वो कलिमा किस बाप से आ रहा है, फिर उसके बाद उसका सेगा और फिर असल। ये 3 चीजें अगर हमारे जहन में रहे तो तालीम करने में आसानी होगी। इसलिए हम सबसे पहले ये तीनों चीजें पहले लिख लेना। सबसे आला असल में बाप क्या है इसका, बाबे नसरा से। वजन क्या है, फ़अला, बाबे नसरा से फ़अला के वजन पर असल क्या था, क़बला। ये 3 चीजें अगर हम अच्छी तरीके से याद रखें तो कायदे नाफिज करने में और तालील करने में आसानी होगी। तो काला असल में बाबे नसरा से फ़अला के वजन पर क़बला था, वाव मुतहर्रिक मा क़बल मफ्तूह है, इसलिए वाव को अलिफ से बदल दिए तो काला। यही खाफा में और बा में तालील हुई। यक़ूलु असल में बाबे नसरा से यनसुरु के वजन पर यक़ुलु था, वाव मुतहर्रिक मा क़बल हर्फ सही साकिन है, इसलिए वाव की हरकत नकल करके मा क़बल को दिए तो यक़ूलु हुआ। अब यख़ाफ़ु और यबीउ में, यख़ाफ़ु में थोड़ा सा
اور مزید اس میں تعلیل ہوتی ہے. یخاف اصل میں باب سمیعہ سے یسمع کے وزن پر یخوف تھا. واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے اس لیے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیے تو یخوف ہوا. اب واو ساکن ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیے تو یخاف. اس کے بعد تیسری تعلیل یقالو کی ہے. یقالو میں جو تعلیل بھی یخافو ہی کی تعلیل ہے وہ آپ کے پاس اس کی پی ڈی ایف ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد صیغہ ہے امر کا قل بع اور خف. قل انصر کے وزن پر اصل میں باب نصرہ سے انصر کے وزن پر اقبل تھا. اقبل واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے اس لیے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیے تو اقول ہوا. اقول ہوا. واو بھی ساکن لام کلمہ بھی ساکن اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کر دیے تو اقول ہوا. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کلمے کا اگر پہلا متحرک ہو تو پھر حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے یہاں پر کلمے کا پہلا متحرک ہے حذف کر کے قل تو اصل میں اقبل تھا, اقبل سے قل ہوا. اسی طریقے سے اخوف سے خف بنا, ابیع سے بیع بنا. یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر کچھ صیغے ایسے ہیں جو مشترک پائے جاتے ہیں. لفظ قل ہے, اگر اس کے ہم گردان کریں گے قل قولا قولو قولی قولا جمع مذکر حاضر. امر کا جمع مذکر حاضر قلنا تھا, جمع مذکر حاضر قلنا تھا جو اصل میں اقبلنا تھا. اسی طریقے سے اعلیٰ کی اگر گردان کریں ماضی کی, ماضی معروف کی, اس میں بھی آپ دیکھیں گے جمع مؤنث غائب قلنا تھا. قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا. یہاں پر میں نے بتایا تھا کہ مضمون ماضی میں عین کلمہ یائی نہ ہو اور بابی مکسور العین نہ ہو تو فا کلمے کو ضمہ دیا جاتا ہے. تو وہاں پر بھی قالا سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ قلنا, امر حاضر میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ قلنا. اور اسی طریقے سے ماضی مجہول میں بھی قیلا قیلا قیلو قیلت قیلتا قلنا ہو جائے. ماضی معروف کا جو قاعدہ تھا اسی قاعدے کے مطابق یہاں پر بھی ضمہ دیا جائے گا فا کلمے کو, تو وہ بھی قلنا. تو گویا کہ قلنا تین صیغے ہوتے ہیں. ماضی معروف میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ, ماضی مجہول میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ, اور امر حاضر میں امر حاضر مؤنث کا صیغہ. ہم اس کی جو بھی تفریق ہے اس کو اس کے اصل صیغے کے ذریعے پہچانیں. قلنا اگر ماضی معروف ہے تو اس کی اصل قبلنا ہے. قلنا اگر ماضی مجہول ہے تو اس کی اصل قبلنا فعلنا کے وزن پر قبلنا ہے. اگر امر ہے تو اس کی اصل اقبلنا ہے. ایک اور اشکال جو پیدا ہوتا ہے خف ہے. خف یہ امر ہے, خافا سے امر خف ہے. اس کا جو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ آتا ہے خفنا آتا ہے فتح کے ساتھ, فا کلمے کو فتح کے ساتھ خفنا. جبکہ ماضی مجہول اور ماضی معروف میں جمع مؤنث غائب کا صیغہ خفنا آتا ہے. خفنا اگر ہے تو ماضی معروف یا ماضی مجہول جمع مؤنث غائب کا صیغہ. خفنا اگر ہے تو امر حاضر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. ایک اور چیز, اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کرنے کی بات عام طور پر صرف میں بہت زیادہ آتی ہے. جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو تو ان میں سے حرف علت ہی کو حذف کیا جائے گا, حرف صحیح کو نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں, آگے تعلیل آ رہی ہے اس میں اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی. جب دو ساکن ایک جگہ جمع ہو تو ان میں حرف علت ہی کو حذف کیا جائے گا, حرف صحیح کو نہیں. دوسری بات, اسی حرف علت کو واو اور یا اسی واو یا الف کا حذف کیا جائے گا جو حروف اصلی میں ہو, عین فا عین لام کلمے کی جگہ میں ہو.
फा आइन लाम कलमे की जगह में जो वाव अलिफ या आइन उन्हीं को हज़फ करेंगे, उसके अलावा दूसरों को अगर हम हज़फ करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। आगे मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं। तो खफ बी की भी मैंने तालीम आपके सामने भी कर दी। आइनुन की तालीम तो बहुत आसान है। आइनुन के वजन पर असल में बाबे नसरा से नासरुन के वजन पर काबिलुन था। वाव इसमें फाइल के आइन कलिमे में अलिफ के बाद वाक़े हुआ है, इसलिए वाव को हमजा से बदल दिए तो काइलुन हुआ। अब आखिरी जो तालीम है मक़ूलुन, मख़ूफ़ुन और मबीउन की, इसी की तालीम जरा लंबी है, खुसूसन मबीउन की। इसको जरा और से देखें। मक़ूलुन असल में बाबे नसरा से मंसूरुन के वजन पर मक़बूलुन था। मक़बूलुन के वजन। अब आप इसमें ये गौर करें कि इसमें आइन कलिमा कौन है और वो आइन इसमें हर्फ इल्लत कौन है और फिर असली हुरूफ कौन है। देखिए इसमें भी वाव है लेकिन ये असली हुरूफ में नहीं है, क्योंकि ये मफऊल की अलामत है। इस एतबार से इसमें दो वाव है। पहला जो वाव है वो असली हर्फ का है, आइन कलिमे का है, और दूसरा जो वाव है इसमें मफऊल की अलामत है। जब हज़फ करने की बारी आएगी तो इसको हज़फ करेंगे। पहले जो आइन कलिमे में इसमें मफऊल की जो अलामत है उसे हज़फ नहीं करेंगे हम। तो चूंकि वाव मुतालिक माक़बल पे सही साकिन है, वाव को तब्दील करके माक़बल को दिए तो मक़बूल हो गया, दो वाव साकिन हो गए। तो उनमें से हम कौन से वाव को हज़फ करेंगे? इस वाव को हज़फ करेंगे तो मक़बूल होगा। यही तालीम मख़ूफ़ुन में भी हुई है। अलबत्ता मबीउन, मफ़ऊल या मसरूबुन के वजन पर मबयूबुन था। या मुतहर्रिक माक़बल हर्फ सही साकिन है, इसलिए या की हरकत नकल करके माक़बल को दिए। तो मबयूबुन हुआ, यानी वाव भी साकिन या भी साकिन। या आइन कलिमा है और वाव इसमें मफऊल की अलामत है। इज्तिमा साकिनैन की वजह से हम या को हज़फ कर देंगे। इज्तिमा साकिनैन की वजह से या को हज़फ कर देंगे तो मग़बूबुन हुआ। याई है, बा यबीउ याई है, याई होने की वजह से ज़म्मे को कसरे से बदल देंगे। याई होने की वजह से ज़म्मे को कसरे से बदल देंगे तो मबयूबुन हुआ। फिर वाव साकिन गैर मतलब माक़बल मकसूर है, इसलिए वाव को या से बदल देंगे तो मबयूबुन। तो असल में मबयूबुन था, ये 5 मराहिल से ये गुजरने के बाद मबयूबुन होता है। तो ये इसमें मफूल है। ये तालीलात हैं। इसके अलावा मैंने कुरान मजीद की कुछ आयतें दी, तकरीबन 30 आयतें, और ये सारी आयतें सूरह बकरा की हैं और बल्कि पूरी आयतें पहले पारे की, बस आखिरी की जो 3 मिसालें हैं वो शायद दूसरे पारे की हैं। इनमें हम सुलासी मजीद के अजवफ के जो भी कलिमात हैं उस पर मैंने खत भी लगा दिया है, लकीर भी लगा दी है। इसको हम देखें, इसका कलिमा सेगा क्या है, वो असली क्या है, किस बात से आता है। इन पर अगर हमारी नजर रहे तो यकीनन हमको समझने में आसानी हो। जैसे वमिनन नासी मैं यक़ूलु, ये अजवफ़े बाबी है। यंसुरु के वजन पर यक़ूलु था, तारीफ के बाद यक़ूलु हुआ है। युक़ीमुना सलाह, युक़ीमुना युक्रिमुना के वजन पर युक़बिमुना था, तारीफ के बाद युक़ीमुना बना। इस तरीके से अगर हम गौर करते जाएं तो इंशाअल्लाह इन क़वाइद को और तारीफ़ को समझने में आसानी होगी। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।